Okay, everyone. So this is chapter number 4, legal status of registered company. So this is all about Companies Act, 100% Companies Act dependent chapter. In this particular chapter, can I say chapter number 4 is nothing but extension of chapter number 2? Chapter number 2 was types of company. Chapter number 4 is dealing about every other company which was not dealt in chapter number 2. So if I again go back to chapter number 2, private company, public company, producer company, foreign company, OPC, this some Nidhi company, this some 6 to 7 companies were already dealt, and jo reh gaya, and that is small company, government company, and I can say holding and subsidiary company. And एक और आता है, that is section number 8 company, but because we have a separate chapter of NPO, they have dealt that particular chapter in that separate segment, chapter number 7, not here. So we'll be dealing with that also. And as a part of this one more company, yes, definitely associate company. Now I would like to ask you one thing. Can I register small company or associate company or holding subsidiary company separately, that I have incorporated small company? Is it possible? Yes or no? Of course not, ma'am. Is it possible I have incorporated holding company? Possible? No, you cannot incorporate holding company. You can be somebody's holding by acquiring more than 50% of your voting right, but not otherwise. But can I incorporate subsidiary company? Possible? Can we incorporate subsidiary company? Directly? Yes. If Reliance want to incorporate a company where more than 50% stake is with Reliance Industries Limited, of course it will be treated as a subsidiary. So subsidiary can be incorporated. And last, associate. Again, nobody can incorporate, but if you have a 20% or more stake in the company, right? So my company having more than or equal to 20% of stake, can I say by default there will be a significant influence? And if there is a significant influence, it will be treated as an associate company. So starting with first, small company. You know that there is amendment. All those people who have done previous coachings before, you can say 2020, अगर आप 2020 के पहले स्मॉल कंपनी डेफिनेशन पढ़े थे, लॉकडाउन के पहले की बात है, then of course you have to go with the amendment. So basically if I talk about small company, you know that it is always a private company. Can I say it's a part and parcel of private company only? Because of your capital and because of your turnover, which is up to certain limits, I can treat the company as a small company. Can anyone tell me what is the capital limit currently? The current limit of capital is? What is current limit of capital for small company? Maximum 2 crores. And what about turnover? What about turnover? 20 crores is a current limit. ये कुछ करंट लिमिट है, ये डेफिनेटली आगे जाके 10 करोड़ तक गवर्नमेंट लेके जा सकती है. इसको गवर्नमेंट कहाँ तक लेके जा सकती है? 100 करोड़ तक एक्सीड कर सकती है. बट करंट एक्टिव लिमिट्स, कैन आई से दिस वन? यस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. कंपनी है एक ABC लिमिटेड, जिसका कैपिटल है लेट्स से 1.7 crores and turnover है let's say 15 crores. Can I treat this company as a small company? Yes or no? बीच में है and, both should be satisfied. Yes or no? Can I treat this company as a small? Yes or no? Come on, answer fast in chat box. Yes or no? Fast. Come on, jaldi. पर्सनल मैसेज डालने की जरूरत नहीं. यू कैन पुट इट इन द एवरीवन, सो रेस्ट ऑफ द पीपल शुड ऑल्सो नो. ओके, एक बार थोड़ा ध्यान से और देखो, बिकॉज इफ आई एम योर चेकर फॉर दिस आंसर आई वुड हैव गिवन 0 फॉर फुल केस लॉ इफ दिस इज द केस लॉ. ऑलमोस्ट नहीं, एवरीबडी आंसर्ड yes because you saw the limits. Did you check the name? हुआ ना मिस्टेक? क्या लिखा है ये मैंने? Did you check the name? Is small company concept there for public company? Yes or no?
Can public company be treated ever as a small company? Yes or no? अगर जो लोग आंसर दे रहे हैं ना यस मैम, तो थोड़ा ध्यान देना, इधर ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में, अदर देन पब्लिक कंपनी. सो अब मुझे वापस से आंसर करो. यू कैन सी द लिमिट्स आर परफेक्ट. कैन आई से इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन? कैन आई से यहाँ पे बहुत समझ में आता है मैम, नाम में बहुत कुछ रखा है. Yes, you can see the name was limited, which simply say it's not private company, it's a public company, and public के लिए तो small company concept ही नहीं है. करेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? क्या ये स्मॉल कंपनी है, हाँ या ना? आंसर नो. ओके, लेट मी चेंज लाइक दिस. अभी है, अभी ये स्मॉल कंपनी है? कम ऑन, आंसर इन चैट बॉक्स एवरीवन. क्या अब ये स्मॉल कंपनी है? यस मैम, अभी ये स्मॉल है. आई कैन सी कैपिटल भी लिमिट के अंदर है, टर्नओवर भी लिमिट के अंदर है. नाउ इट इज अ स्मॉल कंपनी. लेट मी चेंज वंस अगेन. मैम, इट्स अ प्राइवेट कंपनी बट इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ लेट्स से XYZ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको अज्यूम करना हो, नो प्रॉब्लम. क्या अब ये स्मॉल है? क्या अब ये स्मॉल है, हाँ या ना? ये प्राइवेट है मैम, यस. लिमिट्स विद इन है, यस. क्या अभी ये स्मॉल है, हाँ या ना? सो मैं आपको वापस से बता दूं, स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट किसको एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज को. अगर आप किसी की होल्डिंग हो, अगर आप किसी की सब्सिडरी हो, क्या आप स्मॉल के बेनिफिट कभी भी ले पाओगे, हाँ या ना? नो मैम, नेवर. मैम, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी हूँ, भाई तुमको तो इतने बेनिफिट्स दिए दैट यू डोंट हैव टू इवन ट्राई फॉर स्मॉल कंपनी. यू आर ऑलरेडी वेरी मच बेनिफिटेड. यू प्लीज डोंट फाइंड द अदर लूपहोल्स और अदर सिस्टम्स वेर यू कैन गेट मोर बेनिफिट्स. यू आर ऑलरेडी गिवन इनफ बेनिफिट्स. सो आपके लिए भी स्मॉल कंपनी कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड थर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो अब मुझे बात बताओ, हम जनरली, ये एक स्टूडेंट मेंटालिटी बता रही हूँ, जब भी आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने जाते हो, सच्ची बताना आपने हमेशा इस चीज़ को ही फोकस किया है ना? बाकी आजू बाजू की चीज़ें हम देखना भूल जाते हैं. अगर पेपर थोड़ा ट्रैप क्रिएट हो, जहाँ पे हम नाम ना देखें, होल्डिंग सब्सिडरी ना देखें, सेक्शन 8 देखना भूल जाएं, कि ना ऐसे हमारा पूरा आंसर गलत चला जाएगा. यस, समझा? So, coming on this chapter number 4, जहाँ पे introductory part है, what is company and the features of company. I don't have to go for that. यहाँ से आता है small company. Can you see the language? Can you see the language? Other than public company. It means it's not for public company. And paid up capital, this is the new limit. All those having old limit, please correct it accordingly. And साथ में ये, nothing in this clause apply to this companies means section 8 subsidiary, holding and special companies cannot take the advantage of small company even though their limit are within. Great, but you are not falling in the concept. So आपको अपनी limits देखने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप limits में हो, still में आपको small का status नहीं मिलेगा. Clarity. सो अब यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्विस्ट करके इस तरह से कि ए कंपनी है, बी कंपनी है, ये इसकी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, सेक्शन 8 है, वॉट एवर इट इज़, प्राइवेट है, पब्लिक है, और इसकी ये लिमिट्स है. इज इट अ स्मॉल कंपनी? ऐसा करके केस लॉ पूछा जा सकता है. फॉर दैट यू शुड बी थरो विद द स्मॉल कंपनी कॉन्सेप्ट. आर वी ऑल क्लियर? यस, ओके. इसके अलावा सेकेंड कॉन्सेप्ट, होल्डिंग and subsidiary company. See, this concept is really very important. Can I say holding and subsidiary का जो relation है वो more than 50 पे होता है, 50 पे नहीं? Yes, correct. ओके. एंड ज़रूरी नहीं है कि होल्डिंग कंपनी खुद सब्सिडरी में होल्ड करे. होल्डिंग कंपनी अगर उसकी कोई और सब्सिडरी है तो उसके साथ मिलके भी होल्ड करे तो चलेगा ना, बाय इटसेल्फ और अलॉन्ग विद द अदर सब्सिडरीज. यस, सो ऐसा हो सकता है ना, ए की एक सब्सिडरी है बी और बी का इन्वेस्टमेंट सी में, सो लेट्स से 74%, तो ये हुई होल्डिंग, ये है सब्सिडरी, एंड बी का सी में सिर्फ 40% है और ए का भी सी में 20% है. तो हो गई ना ए यहाँ पे अगेन होल्डिंग एंड ये सब्सिडरी.
because it is with its subsidiary holding some stake in C. क्लैरिटी सिखाया था ना ये पूरा. सो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि आइदर itself or along with its other subsidiaries. मैम क्या, either holding more than 50% voting rights, and second control इन मैनेजमेंट. और कंट्रोल इन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में कौन सा डायरेक्टर रहेगा, जाएगा, आएगा, ये सब हम डिसाइड करेंगे, हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है. सो आई वुड से दैट माई मैनेजमेंट इज द वन हु इज कंट्रोलिंग योर मैनेजमेंट. आर वी क्लियर एवरीवन? क्लियर यहाँ तक? राइट. सो एक ये है. इसके अलावा थोड़ा और आगे जाएं. सो आपको एक और चीज़ ध्यान में देनी है दैट पब्लिक की जो सब्सिडरी होती है वो भी क्या ट्रीट की जाती है. अगर वो प्राइवेट भी है तो ट्रीट क्या करेंगे? पब्लिक. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी की. अगर कोई सब्सिडरी है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? कैन आई से गवर्नमेंट कंपनी? यस, गवर्नमेंट कंपनी. सो बेसिकली अगर हम होल्डिंग सब्सिडी की बात करें तो यू नो दैट आई हैव टेकन सो मेनी सिचुएशंस विद यू. मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशंस सिखाई थी कि ए का बी में इतना इन्वेस्टमेंट है, ए का बी में, देन बी का सी में. अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इतनी सारी ये होल्डिंग है, बाकी सब उसकी सब्सिडरीज हैं. पॉसिबल है? यस मैम, पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम. ये पॉसिबल है. आपकी एक साथ 1000 सब्सिडरीज भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पर अगर हम बात करें 186 जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, एंड देयर आर सम टाइप ऑफ कंपनीज जहाँ पे कहना है 2 लेयर से ज़्यादा नहीं हो सकता. नाउ नो मोर. करेक्ट. तो आपको ये याद होना चाहिए कि फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी सम सॉर्ट ऑफ कंपनीज 2 लेयर से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. फॉर रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर फाइन. पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपकी सिर्फ 2 सब्सिडरीज हो सकती हैं. आपकी लेयर वाइज सिर्फ 2 हो सकती है, अदरवाइज यू कैन हैव 2000+ सब्सिडरीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, होल्डिंग सब्सिडरी. एक स्मॉल, एक होल्डिंग सब्सिडरी. अब नेक्स्ट थर्ड पे मैं आ रही हूँ, दैट इज एसोसिएट कंपनी. अब आपको मैं थोड़ा याद कराऊँ. जैसे मैंने एसोसिएट कंपनी बोला, देन आई सिंपली सेड 20%. इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू से 20%. बट अगर एग्जाम में 20% डायरेक्ट लिखते हो तो इफ आई एम द चेकर आई वुड डेफिनेटली कट योर मार्क्स. कैन आई से आई रियली वॉन्ट दिस वर्ड? दिस वर्ड हैज़ टू बी देयर. कैन आई से दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. एंड फिर आप नीचे लिख सकते हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स 20% और मोर इंक्लूसिव ऑफ JV एंड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस इज वॉट इज नीडेड. सो एसोसिएट कंपनी, इट्स अ प्योर डेफिनेशन. कोई उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है. नो मोर कॉन्सेप्ट. इट्स जस्ट सिंपल थिंग दैट यू हैव significant influence over another company, then you will be treated as associate of each other. but आप सब्सिडरी नहीं होने चाहिए. और सब्सिडरी तो कब बनता है? कहने से मोर देन 50 पे. और अगर मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना हो तो 20 to 50 इज एसोसिएट. नॉर्मल लैंग्वेज में, लिखने वाली लैंग्वेज में नहीं. लिखने में तो यही लिखना है. क्लियर? सो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने सब किया था, मेरा मार्क्स कम आया. कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मार्क्स कट होते हैं. वेर यू आर सपोज टू राइट सम लैंग्वेज. आई एम नॉट सेइंग राइट बुकिश लैंग्वेज, पर अगर आप पूरा एसोसिएट समझाओ, एसोसिएशन समझाओ, रिश्ता समझा दो, पर भाई रिश्ते का ये वर्ड लिखना भूल जाओ, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग एसोसिएट कंपनी. क्लैरिटी. एंड गवर्नमेंट कंपनी में मुझे कुछ भी समझाना नहीं है. यू ऑल नो 51% और मोर. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. मैम एक कंपनी है ABC. उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट 30% होल्ड करती है. मैम उस कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लेट्स से 10% होल्ड कर रही है. मैम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो होल्डिंग 10%, नो नॉट 10%, लेट्स से 8% होल्ड कर रही है. मैम RBI होल्ड कर रही है 4% एंड LIC होल्ड कर रही है 60%. क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? येस और नो? येस और नो?
सो जिन लोगों ने मुझे येस बोला लेट्स या नो बोला लेट्स अंडरस्टैंड, कहने से गवर्नमेंट डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा लिखा है ना, करेक्ट। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड करता है 30, ये कितना करता है 10%, ये भी है तो मतलब 8% टोटल। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हटा के मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। सो 18% प्लस 30% टोटल कम्स टू 48। अब आप मुझे बताओ क्या मैं आरबीआई को और एलआईसी को गवर्नमेंट बोलूँ? Can I say them as a government? That is government organization, I agree. Government corporation, agree. Government owned entity, agree. क्या ये गवर्नमेंट है? मतलब मुझे बीजेपी का कोई काम हो, कांग्रेस का कुछ काम हो तो आरबीआई में हो जाएगा, करेक्ट? क्या ये चीज़ मैंने क्लासेस में भी नहीं करवाई है? सोचो इस चीज़ को, सेम चीज़ करवाई है और ये ऑलरेडी पास्ट एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट? क्या आप इनको काउंट करोगे? हुई ना फिर भी गलती। मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स वर येस मैम, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। नो, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स 48 ओनली, वेयर आई नीड 51% और मोर। क्या मैं इनको काउंट कर सकती हूँ? नो, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, पर उसको हम यहाँ थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ सीजी और एसजी को ही इंक्लूड करना था, नो अदर एंटिटीज। आर वी क्लियर? सो आपको नाबार्ड, राइट, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सारे वर्ड्स डाल के देंगे, आरबीआई डाल के देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज जस्ट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन कि यार ये भी तो गवर्नमेंट है, पर गवर्नमेंट में होल्डिंग सिर्फ सीजी और एसजी की काउंट करनी है, नो अदर होल्डिंग्स। आर वी क्लियर? अब ये है चैप्टर नंबर 4 जिसमें सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आपको ऐसा एक वर्ड पूछा जा सकता है, एग्जेम्पशंस टू गवर्नमेंट कंपनी, एग्जेम्पशंस टू स्मॉल कंपनी, कंप्लायंसेस फॉर स्मॉल कंपनी, कंप्लायंसेस फॉर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, जो आपकी बुक में लाइन वाइज दे रखे हैं। एंड वो चीज़ कंपनी लॉ पढ़ने के बाद ज़्यादा ईजी लगता है, करेक्ट? बिकॉज सो मैनी एग्जेम्पशंस विच इज़ एक्चुअली लर्न एंड टॉट इन कंपनी लॉ, जो आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि ओके इनको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाले सेक्शन से एग्जाम्पशन है। कैन आई से दैट? बट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ना तो कंपनी लॉ में ही पड़ेगा। दिस इज द चैप्टर। सो you should be knowing 7 to 8 point that is given as a government company का exemptions, 7 to 8 point given as an exemption to small company, जिस तरह चैप्टर नंबर 2 में ओपीसी के लिए है वैसे यहाँ पे दिस इज चैप्टर नंबर 4। देयर इज नथिंग मोर बट द बेस्ट पार्ट आई वुड से कंपनी लॉ पूरा खत्म हो जाए फिर चैप्टर नंबर 4 पे आओगे, चीज़ें एकदम आपके लिए ईजी हो जाएंगी। क्लैरिटी एवरीवन? सो दिस इज चैप्टर नंबर 4।